مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے طور پر فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، کہاں ہوگا خلافت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا، کہاں ہوگا خلافت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا، خدا محفوظ رکھے نظر بد سے حسن فاروقی، خدا محفوظ رکھے نظر بد سے حسن فاروقی، کڑی مشکل سے پایا تھا نبی نے شاہزی ایسا، رضی اللہ تعالی۔ معزز و مکرم حضرات سامعین نظام، گزشتہ ہفتے عموماً حضرات صحابہ کی سیرت بیان کی گئی تھی، جس کا اصل مقصد اس ہفتے سوان عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا۔ بیک وقت ایک ہی وقت میں آپ نے عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں پر اپنے زمانے خلافت میں حکومت کی۔ آپ کے دور خلافت میں دریا خشک ہو گیا۔ آپ نے دریا کے نام ایک رقعہ لکھا، ایک پیغام بھیجا، جس سے دریا کا بہاؤ شروع ہو گیا، اور اس وقت سے آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے۔ اسی طرح آپ کی حکومت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، آپ نے زمین پر پاؤں مارا اور اس زور سے زمین کو مخاطب کیا اور کہا کہ زمین تو کیوں جنبش دیتی ہے؟ کیا عمر نے تیری پشت پر انصاف کا ماحول قائم نہیں کیا؟ زمین کا یہ سننا تھا کہ فوراً زلزلہ خاموش ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے ساتھی میدان کارزار میں مشغول تھے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے مدینہ کی زمین سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوا کے ذریعے پیغام بھیجا، یا ساریہ الی الجبل۔ مدینہ سے اور میدان کارزار میں بذریعہ ہوا آپ نے پیغام پہنچایا۔ اسی طرح کسی نے آگ کے بھڑکنے کی خبر دی، آپ نے اپنی چادر انہیں عنایت فرمائی، ان صحابی نے سوار ہوتے ہوئے آگ کو اس طریقے سے ختم کیا جس طرح زمین سے کوڑا پھینک دیا جاتا ہے۔ الغرض آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربع پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں تمام کے تمام صحابہ نبی کے مرید تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی کی مراد تھے۔ اللہم اعز الاسلام کہہ کر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال کیا، اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو مجھ پر تام نہ کرتا، یہ دریائے نبوت بہتا رہتا، تو اس کی ایک موج حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں پر تام فرمایا اور آپ امام الانبیاء قرار پائے، اس لیے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بہت ساری چاہتیں اور بہت ساری دل کی درخواست ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ترجمانی قرآن کرتا ہے۔ ادھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ادھر قرآن کی آیتیں بن کر حضرت جبریل وحی لے کر نازل۔ تو ان تمام خصوصیات کے پیش نظر
शैतानी एजेंट खुमैनी नामी एक शख्स जिसने कशफुल बारी नामी एक किताब लिखी, उसके अंदर जहां खुलफाए राशिदीन को पेश नजर रखा गया, उन्हीं के साथ साथ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह की शान में तौहीन की और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद किया। आज भी उस खुमैनी जहन को रखने वाले इस्लामी लिबादा ओढ़कर मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के शान के अंदर गुस्ताखी की और आपके दामन इफ़्फ़त को दागदार किया। वो करते रहे। ये ऐसा है कि कोई इंसान सूरज को चिराग दिखाए, चिराग दिखाने से सूरज की रोशनी मध्यम नहीं पड़ा करती, उसके अंदर कोई कमी पैदा नहीं हुआ करती है। इसी के पेशे नजर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के सच्चे जानिसार और खुलफाए राशिदीन के अहम रुकन थे और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा उसी वक्त तक आपको याद किया जाता रहेगा और जब दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अव्वलीन सब में आपका शुमार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फजीलतों से आपको नवाजा था। ज़माने जाहिलियत के अंदर, हाँ साहब हम अपनी ज़बान में कहें, चौधरी कहें, आपको चौधरी और खासाब कहा जाता था। आपके पास इल्म भी था, मालूमात भी थी। जब कुफार किसी से बात करने भेजते तो इंतखाब हजरत उमर का होता। कोई मामला फंस जाता, उसमें सरपंच हजरत उमर बना करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह उनको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतों से ज़माने जाहिलियत के अंदर भी नवाजा था। तेज रफ्तार घोड़े पर उछलकर चढ़ जाया करते थे, सवार हो जाया करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि खास तौर से 3 मकामों पर मेरे दिल के अंदर जो ख्वाहिश हुई अल्लाह ने उसे कुरान बनाया। बहुत सारी आयतें कुरान करीम की ऐसी हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल की तर्जमानी करती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और आप अपने बारे में फरमाते हैं कि मेरे दिल में खदशा हुआ और ख्वाहिश जाहिर हुई कि मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की जाए। इसी के पेशे नजर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लवी तखज़ना मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे दिल की यह आरजू और तमन्ना है कि मकाम इब्राहिम जो जगह बैतुल्लाह के करीब है, यहाँ पर 2 रकत नमाज अदा की जाए, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिर्क की जड़ों को खत्म किया था और एक तौहीद के पैगाम को आम किया था। हम उसी याद को ताज़ा करने के लिए 2 गाना अदा करते हैं ताकि आने वाली नस्लों को ये पैगाम मिले कि ये सर सिर्फ अल्लाह ही के सामने झुकने वाला है और एक अल्लाह ही हमारा रब और परवरदिगार है। इस पैगाम को आम करने के लिए मेरे दिल की आरजू है यहाँ पर 2 रकत अदा की जाए। आपके दिल के अंदर आरजू पैदा हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्फाज देखें आप, जो अल्फाज आप कहते हैं वही कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। नबी जी आप ज़ायरीन से कहें कि तवाफ के बाद 2 गाना मकाम इब्राहिम पर अदा करना वाजिब है, इख्तियार नहीं वाजिब है। आपके दिल के अंदर तमन्ना हुई, आपने अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी चाहत को कुरान की आयत बनाया। इसी तरह एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना निसाका युदखिलु अलैकल बर्र वल फाजिर फलौ अमरता उम्महातिल मुमिनीन बिल हिजाब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास मुख्तलिफ नौइयत के इंसान आते जाते हैं और बाद मर्तबा काफिर और फाजिर भी सवालात की गर्ज से आपके पास आते हैं, आपके घर तशरीफ लाते हैं, आपकी बीवियों पर उनकी नापाक नजरें पड़ती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बीवियों को पर्दे में रखा जाए ताकि उनकी बुरी नजरें उम्महातुल मुमिनीन के मुबारक चेहरों पर ना पड़े। अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। हजरत उमर ने ख्वाहिश जाहिर की
पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, फौरन हजरत जिब्रील तशरीफ लाते और कहते हैं या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से, मुसलमान औरतों से कि आज से तुम्हारे लिए पर्दा करना लाजिम है। हजरत उमर ने ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह ने कुरान की आयत बनाई। इसी तरह अरब के अंदर शराब बड़ी आम थी, पानी से ज्यादा आम थी, हर घर के अंदर शराब का चलन था। हजरत उमर रजी अल्लाह उनको बड़ा बुरा लगा और आप अल्लाह ताला से दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरि बयानन शाफिया, ए अल्लाह शराब के बारे में कोई हुक्म नाजिल फरमाइए। फौरन कुरान की आयत नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा। क्या आप लोगों से कहे इसके अंदर नुकसान भी है, फायदा भी। माल जाय होता है, नुकसान है। बकवास की जाती है, नुकसान है। बदतमीजी इंसान करता है, नुकसान है। लेकिन थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, थोड़ा इंसान तफरी के मूड में आ जाता है तो फायदा है। तो इसका अंदर नुकसान भी है, फायदा भी है, लेकिन इसका नुकसान इसके फायदे से बड़ा है। इस आयत के नाजिल होने के बाद शराब का चलन कम हो गया, हराम नहीं हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरी मर्तबा अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरि बयानन शाफिया, ए अल्लाह मजीद वाज़ेह हुक्म नाजिल फरमाइए। तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ए मुसलमानों, ईमान वालों, नमाज के वक्त शराब नहीं पीनी। ऐसा ना हो कि क़िराअत खल्त मल्त हो जाए, नमाज खराब हो जाए। अब जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो बहुत से सहाबा ने शराब छोड़ दी, इसलिए कि दिन के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़नी थी और नमाज की तैयारी सहाबा अजान से पहले किया करते थे, तो वक्त बहुत कम रहता था, अपने कामकाज में मशगूल रहते थे, शराब पीने का मौका नहीं मिलता था। सहाबा ने, बहुत से सहाबा ने शराब कम कर दी, छोड़ दी, लेकिन शराब हराम नहीं। अब तीसरी मर्तबा हजरत उमर ने फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरि बयानन शाफिया, अल्लाह मजीद इस हुक्म को वाज़ेह फरमा दीजिए। तीसरी मर्तबा में अल्लाह ताला ने कहा, नजिस, शराब बिल्कुल हराम है। और जिस दिन ये आयत करीमा नाजिल होती है उस वक्त तमाम के तमाम सहाबा ने अपनी शराबों को फेंक दिया, जिनके हाथों में जामे शराब था उन्होंने फेंक दिया, और मक्का की गलियों में शराब इस तरह बह रही थी जिस तरह पानी बहा करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बार बार अल्लाह से दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल्कुल हराम कर दिया। इसी तरीके से एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमाए और आपने कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। हजरत उमर को समझाया कि उमर देखो अल्लाह ताला किस तरीके से इंसान को बनाते हैं। एक पानी जिसको नुत्फा कहते हैं वो मर्द से औरत के अंदर मुंतकिल होता है, फिर वो नुत्फा मुज़ग़ा यानी खून का लोथड़ा बनता है, उसके बाद वो मुज़ग़ा इज़ामा हड्डी बनती है, फिर इज़ामा के बाद फ़कसौनल इज़ाम लहमा, उसके बाद गोश्त चढ़ाया जाता है, नक्शे बनाए जाते हैं, सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। तो जिस रब ने बगैर आइडियल और नमूने के एक मर्तबा नुत्फे से मुज़ग़ा, मुज़ग़े से इज़ामा, इज़ामा से फ़कसौनल इज़ाम लहमा बनाकर तैयार कर दिया, उस रब के लिए सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, दोबारा मरने के बाद जिंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। जब ये अल्फाज हजरत उमर ने सुने तो बेसाख्ता खुशी के मारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहने लगे, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, वाकई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रब दोबारा पैदा करने पर कादिर है। और आपने जो अल्फाज बयान फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इस आयत के आखिर में इनको शामिल कर लिया जाए, तो आपने जो अल्फाज बयान फरमाए अल्लाह ने उसे कुरान बनाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जिना की तोहमत लगी, सीधे साधे मुसलमान गिरफ्तार हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ने सबसे पहले इसकी मुखालफत और नबी के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता कराने वाले सहाबा थे, मैं था, अबू बकर थे, उस्मान गनी थे, हजरत अली रजी अल्लाह थे, या फिर कोई और था। आपने इरशाद फरमाया कि मेरा रिश्ता करने वाला अल्लाह था,
अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अम्मा आयशा से निकाह करूं, इसलिए बीच के अंदर कोई वास्ता और हाइल वास्ता और दरमियान के अंदर कोई जरिया नहीं बना। तो बेसाख्ता हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रब आपके मुबारक जिस्म पर गंदी मक्खियों को बैठना गवारा नहीं करता, वो रब आपके बिस्तर पर गंदी औरत को नहीं ला सकता। अम्मा आयशा पाक दामन। और सुबहान का हाजा बुहतानुन अजीम, आपने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान बना दिया। आपने जो अल्फाज कहे अल्लाह ने कुरान बना दिया उसका। इसी तरीके से एक मशहूर मुनाफिक गुजरा, अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसका इंतकाल हुआ। उसके बेटे ईमान लेकर आए, सहाबी बने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह, आपके पास तशरीफ लाए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि मेरा बाप इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन आपका दरियाए करम बहुत बड़ा है, आप नमाज जनाजा पढ़ा दे और अपना कुर्ता इनायत फरमा दे, तो हो सकता है इसकी बरकत से अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। आपने वादा किया, कुर्ता भी इनायत फरमाया, नमाज जनाजे के लिए भी तैयार है। अब हजरत उमर को पता चला, हजरत उमर ने दरखास्त किया रसूलुल्लाह, इसने बड़ी तकलीफ हमें पहुंचाई, खुला हुआ मुनाफिक था, खुला हुआ इस्लाम का दुश्मन था, आप नमाज जनाजा ना पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, उमर देखो, एक मैं सहाबी के दिल को नहीं तोड़ सकता, मैंने अपने सहाबी से वादा कर लिया है और वादा खिलाफी नबी की शान नहीं है, मैं नमाज जरूर पढ़ाऊंगा। आपने नमाज पढ़ाई, मुसल्ले से हटे, हजरत जिब्रील तशरीफ लाकर कहने लगे इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, पैगंबर अलैहिस्सलाम, इन जैसे मुनाफिकों के लिए आप एक बार नहीं, 2 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा भी अल्लाह से दुआ करें, फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। और मजीद अल्लाह ताला ने हुक्म नाफिज फरमाया, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री, आप कभी किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। और हत्ता के इतना सख्त हुक्म फरमाया कि आप उनकी कब्र पर भी खड़े नहीं हो। हजरत उमर ने दरखास्त की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। इसी तरीके से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते जाते और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत सारी चीजों की दरखास्त किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उसे कुरान की आयतें बना दिया करते थे। तकरीबन 7 मकामात ऐसे हैं कुरान करीम के अंदर कि हजरत उमर के दिल में ख्वाहिश जाहिर हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत बना दी।